So today we are going to attend Indian economy agriculture section and the questions are here. Our aim is to write a good introduction which reflects the demand of the question and formulate an overall framework of the question, though we will not write the body or content because understanding the demand at first stage is very important. That's our goal is. So let's see, our answers are here and the questions are here if you want to write. And for everyone else, and especially you, if you are watching this and you want to get benefit out of this, start writing your answer. The questions are here. Write your answer, compare with these two answer and the guideline that I'm providing. That's how you will make progress. Take it seriously and work on it. Let's begin. So the first question is, in India, village itself, no form of credit organization will be suitable except the cooperative society. All India Rural Credit Survey. So All India Rural Credit Survey has said this. Discuss this statement in background of agricultural finance in India. What? So that's like question or part one. Second part is, what constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? That's part two. And then, how can technology be used to better reach and serve rural clients? So we have three-part question with the statement justification. जो statement दिया है पहले उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना है. देन तीन पार्ट हैं. अगर 15 नंबर का भी क्वेश्चन है तो इट शुड बी इमीडिएटली clear in your head that you have to be very economic with this question and write exactly to the point, and obviously you will have to substantiate it with data. हमारा एम है इस वक्त सिर्फ इंट्रोडक्शन बॉडी को देखना, डेटा वाला हम काम बाद में भी कर सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज अ गुड इंट्रोडक्शन, what a good introduction can be, and what here we have. So copy one has written, cooperatives like PACs help farmer to get easy interest loan for agricultural activity and prevent them from trapping into high interest charging informal institution. Basically debt trap of informal institution. आप इसको sort कर सकते हो. This shows no form of credit will suitable except for cooperative society. Now you had to discuss, okay, and this is not a true statement. Cooperative society के अलावा we are promoting self help groups. अगर आप ये भूल गए हैं तो this is the parallel institution, and now even with digital banking and Bank Mitra, the formal banks are also reaching out to rural areas, and that is what is needed. So you cannot say like just one cooperative societies can be. So you will talk that cooperative societies have a lot of edge in terms of dealing with rural credit ecosystem, but you have to be somewhat pointing out that there are other alternatives, especially self-help group, which have a lot of potential, as well as digital avenue which are presenting themselves, तो उनको utilize करने की जरूरत है. So like that is the core of the first part, and second part हमारा क्या था, constraint. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट पे हम बात करेंगे. उसमें आपका लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन. बेसिकली बड़े बैंक नहीं होते, उनकी ब्रांचेज नहीं होती हैं, इन अभी तक की डिजिटल जो सर्विसेज नहीं आई थी तो उसकी वजह से पहुंचना भी मुश्किल था, बट नाउ इट इज़ ईजियर. तो आप ये सारी बातें कंस्ट्रेंट में लिखते. देन हाउ कैन, अब टेक्नोलॉजी देखो इन्होंने दे ही दिया, तो आप यहीं पे मैंने पहले ही आंसर कर दिया कि यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी विद यूज़ ऑफ बैंक मित्रा एंड हैंड होल्ड डिवाइसेस, जिसके थ्रू ये लोग पैसा निकालते हैं और जमा करते हैं.
तो वो आपको यहाँ पे बेसिकली लिखना था। इन्होंने और क्या लिखा है इंट्रोडक्शन के अलावा, कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस फेस बाय दीज इंस्टीट्यूशन, अच्छी हेडिंग। हैज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विद दीज इंस्टीट्यूशन, sporadically established institution, selective credit, mostly to rich farmer, expanding NPA। अब देखो इसमें इसलिए जो मैं बोलता हूँ ना, आपका कोहेरेंस नहीं है। आप कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हो, कोऑपरेटिव में इतने ज़्यादा NPA कहाँ है? और जो ये आप बात कर रहे हो ना स्पोरेडिक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, ये उतना अप्लाई नहीं होता है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, करप्ट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फार्मर अनअवेयर अबाउट कोऑपरेटिव। तो आपने जितने पॉइंट लिखे ना मोस्टली दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स कोऑपरेटिव। ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सर्विसेज, डाटा कलेक्शन, ऑनलाइन मोड ऑफ पब्लिकेशन, DBT मैकेनिज्म, बायोमेट्रिक। अब ये ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ सही हो जाती हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू सेट द कोर डिमांड, द प्रेमिस, है ना, कि हम इसके थ्रू पहुंच के विदाउट ओपनिंग एनी ब्रांच हम ये फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा सकते हैं यूजिंग किसान क्रेडिट कार्ड एंड हैंड होल्ड डिवाइसेस से हम कर सकते हैं। तो ये आपको कोर ऑफ द कोर यही चीज़ बताना था। कंक्लूजन, जनधन योजना विजन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये, और यहाँ पे आपको कुछ डाटा होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे जो डाटा देता है कि पहले जो है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50% जो थे वो हमारे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, या बेसिकली आपके जो मनी लेंडर ये सब थे, बट इट हैज़ टर्न्ड नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्रेडिट इज मोर देन नॉन इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्रेडिट। तो ये आपको कुछ कुछ डाटा यहाँ पे कोट करना था। चलो देखते हैं सेकंड स्टूडेंट ने क्या लिखा है। इन्होंने सारे कुछ ज़्यादा पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिए इन्होंने। तो पहला इन्होंने आइडेंटिफाई किया है स्टेटमेंट को। देखो स्टेटमेंट को इसने खुद ही बोल दिया ना कि डिस्कस करना है, तो इसीलिए पूरा एक ही पार्ट हो गया। स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया। तो इसको कैसे आप डिस्कस करोगे? इन्होंने तो फर्स्ट वाले ने तो इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना। देन आपने क्या किया है, कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस। ओके, कंस्ट्रेंट अलग रख लिया, चैलेंजेस अलग कर लिए। कर सकते हो अगर आपके पास अगर 15 मार्कर है, एंड इफ यू आर वेरी मच क्लियर देन यू कैन डू दिस, अदरवाइज दे कैन बी क्लब्ड। इन्होंने इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच आर directly connected to its people. This help to establish local groundwork which can help in agricultural financing according to the need and demand of its people. ठीक है। सो आपको अगर इसके साथ जस्टिस करना है या इस चीज़ को जो डिस्कस बोला है ना, बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया, देन यू विल हैव टू टॉक अबाउट कि जो प्रेवलेंट सिचुएशन है, प्रेवलेंट सिचुएशन क्या है कि देयर आर dearth of financial institution, there are no bank branches, in lack of those cooperative societies seem to be like best alternative as per Indian Rural Credit Survey। ठीक है। However, जब नाबार्ड की बात करते हो ना, तो नाबार्ड इज प्रमोटिंग व्हाट, SHG मिशन शक्ति लेके आया था। तो हाउएवर करके चूंकि डिस्कस है ना, तो ये हाउएवर देयर आर अदर अल्टरनेटिव बीइंग प्रमोटेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, वो आप कह देते। देन फाइनली आप कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस जो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, हार्ट एंड कोर, उसके अराउंड आपको 2-3 पॉइंट बना के लिख देना था। इन्होंने क्या और लिखा है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, फॉर्मल बॉडीज इन्वॉल्व लाइक शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, रीजनल रूरल बैंक। हाँ, RRB बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने पकड़ा है, इनफॉर्मल मनी लेंडर। ठीक है। कंस्ट्रेंट फाउंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चैलेंजेस बिफोर देम, इनको एक साथ क्लब करना ही बेहतर होगा। ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया पहले वाले आंसर में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है।
देर इज ऑल्सो, हाँ कंक्लूजन जो इसमें आता है ना, तो इन्होंने जो लिखा है जनधन के बेसिस पे किए है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम एक ब्रिज बना सकते हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. Okay. Second question is, there is also a point of view that Agricultural Produce Market Committee (APMC) set up under State Act have not only impeded the development of agriculture but also have been cause of food inflation in India. Critically examine. अब इसी को लेके गवर्नमेंट APMC एक्ट को, फार्मर्स एक्ट जो लेके आई थी, तो पूरा इशू यहीं पे था. ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है. तो क्या इसका इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कैन यू फिगर इट आउट? और फिगर आउट करने के बाद क्या आप उस चीज़ को इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो? अगर डाल सकते हो तो दैट वुड बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. अदरवाइज वी विल सी इन्होंने क्या लिखा है. तो ये क्या रहा है पहले हम देख लेते हैं. ठीक है, ये स्ट्रांगली नहीं कुछ बात कह रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है कि एपीएमसी जो है इम्पेडेड द डेवलपमेंट. किस चीज़ का डेवलपमेंट इन्होंने रोका है? एग्रीकल्चर. एंड कॉज्ड फूड इन्फ्लेशन. तो ये क्या कह रहा है कि एपीएमसी की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बाधा पड़ी है और फूड इन्फ्लेशन आ रहा है. ठीक है, इस चीज़ को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है. एग्जामिन करना मतलब क्या होता है? सिनेरियो को देखना क्रिटिकली, मतलब उसके साथ साथ जो भी हम रीजन देते हैं ना, उन पे भी आपको थोड़ा सा कमेंट करना होता है. इफ़ देयर इज समथिंग लैकिंग, तो उस रैशनल को या जो भी सीन होता है उसको भी हम अगर उसमें कुछ कमी है तो उस पर हम कमेंट करते हैं जब क्रिटिकली बोला. अदरवाइज सीधे आप एग्जामिन करते हो. ओके, तो इंट्रोडक्शन, और हमें सिर्फ इस वक्त स्ट्रिक्टली हम अबाइड करेंगे अपनी चीज़ों को कि इंट्रोडक्शन, डिमांड और फ्रेमवर्क देखेंगे. APMCs are statutory market board established by state government to provide platform for farmer for selling their produce, but these have been accused of hindering agricultural development and causing food inflation. ठीक है, रीजन फॉर सच एक्यूजिशन, बहुत अच्छा. हिंडरिंग ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली कि दे वर ब्रॉट इन, जो है सबसे पहले तो यही कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, जो इसके पॉजिटिव साइड होंगे, क्योंकि तो खुद ही बात कर रहा है नेगेटिव साइड में. जब आप क्रिटिकल होगे तो पॉजिटिव साइड मतलब जो गवर्नमेंट की साइड है वो रखोगे कि इन लैक ऑफ दिस इट कैन हैपन दैट big farmers or influential people can take the produce of small and marginal farmers, so that can lead to exploitation. तो ये एस्पेक्ट आपको यहाँ पे दिखाना था. और ओवरऑल कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में है कि देयर आर सम लैकुनास विच नीड्स टू बी एड्रेस, जो एक होल्ड है, और उसके लिए गवर्नमेंट फार्मर एक्ट आया था. तो आप उसको भी लिख सकते थे कि जो फार्मर एक्ट लाया था कि द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ब्रिंग आउट फार्मर एक्ट, however it was taken back due to large protests, so there is a need to build up consensus around the issue. तो आप इस तरह से कंक्लूड अब कर सकते हो. उस टाइम की तो बात अलग थी. जो 2014 का ये अभी क्वेश्चन है. इंट्रोडक्शन और बेहतर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आप एपीएमसी को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद इन्होंने चीज़ें बता दिया है. कैसे कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वैसे रीजन आपने लिखा है तो आप रीजन में डिस्कस कर ही दोगे, तो इट कुड बी अ शॉर्टर इंट्रोडक्शन. चलो इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. सेकंड कॉपी इन्होंने लिखा है एपीएमसी एक्ट 2003 वाज इनेक्टेड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट. कैसे भाई, ये तो बहुत पहले का है. एपीएमसी एक्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द डिस्ट्रेस सेलिंग ऑफ फार्मर एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय इंटरमीडियरीज. आप बात थोड़ा सा और अच्छी कर गए हो, बट एक्सप्रेशन जो है अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है. बट यस, यू आर ट्राइंग टू शो द इंटेंट ऑफ द सेड एक्ट विच इज क्वाइट ऑन मार्क.
इसमें और आपको ऐड करना था कि however in recent time it has been accused or however in recent time there is a view that it is impeding the development of agriculture sector as well as causing food inflation reasons. ठीक है, impeded development, source of revenue for state, exploitation, not getting additional price, not sufficient mandis, ये सारी चीज़ें cause for inflation, discourages farmer agriculture practices, corrupt मंडी, ये जो है ना, ये जो आपने बनाया है ना, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना था. विदाउट दैट इट वोंट एड्रेस द थिंग. मतलब आप कर सकते हो बट इट्स बेस्ट दैट यू यूज ब्लॉक डायग्राम टू शो दैट दिस इज द प्रोड्यूस यू फर्स्ट सेल हियर. ठीक है, देन यहाँ से क्या होता है, यू स्टार्ट लाइक फर्स्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर सेल करें कस्टमर को या कंज्यूमर को, तो जो भी प्राइस होगा लाइक 10 रुपये तो आप क्या 12 रुपये 15 रुपये कर सकते हो. बट इट सो हैपन दैट थ्रू एपीएमसी इट गोज थ्रू डिफरेंट चैनल्स. तो यहाँ पे एपीएमसी पे आप 12 रुपये बेचते हो, फिर ये बहुत सारे मिडल मैन यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है, मिडल मैन क्या करते हैं कि दे मेक दिस 12 रुपीज़ टू 20 रुपीज़, और फिर ये एंड कंज्यूमर पे आते आते और ज़्यादा 25 रुपये तक का हो जाता है. सो यू कैन सी द डिफरेंस. सो इट इज़ कॉजिंग इन्फ्लेशन. तो ये आपको इंटरमीडिएट वाला इसकी मतलब स्टेज जो है अच्छे से एग्जांपल के साथ दिखाना था. और जो डेवलपमेंट में है तो बेसिकली कि कई एंगल से जो है इट इज़ प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज वो ये भी था कि जो डिस्ट्रेस है उसका भी रीजन, क्योंकि अगर फार्मर्स को प्राइस नहीं मिल रहा है तो यू कैन कनेक्ट आफ्टरवर्ड, बट वो बॉडी का पार्ट है. सो वी आर स्टिकिंग स्ट्रिक्टली टू our frame. Way ahead use of ENAM agriculture initiative of Ministry of Agriculture, stack initiative, शांता कुमार कमेटी, दलवाई कमेटी. अब ये आपने बातें कह दी बट कोर ऑफ द कोर तो गवर्नमेंट ऑलरेडी लेके आई थी ना, फार्मर्स एक्ट. ठीक है ना, पूरा उस पर अगर आपने उसकी बात नहीं की तो फिर ये इनजस्टिस हो जाएगा ना क्वेश्चन के साथ. तो आप उसको गवर्नमेंट खुद ही इस चीज़ पे लेके आई है फार्मर्स एक्ट, उस पर आप बात करें जिसके लिए एक्ट लेके आई थी. बट इट हैज़ बीन नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट वाज पास्ड इन हरी विदाउट ड्यू कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो. एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म agricultural productivity and elimination of poverty in Indian economy. ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा हो गया कि एक रिलेशनशिप बताना है 3 चीज़ों ABC. ठीक है, डिस्कस द डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फ्रेंडली रिफॉर्म इन इंडिया. ठीक है, तो बेसिकली लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन है ये. तो तुम्हारा लाइक जो 51 में ही आया था ना लैंड रिफॉर्म एक्ट. तो दिस वाज द होल आइडिया, दैट इज टू एड्रेस इनइक्वालिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन so that it can lead to agricultural productivity which will have impact on alleviation of poverty in terms that पुअर पीपल को लैंड मिलेगा, खेती करेंगे और अपना उद्धार करेंगे. सो दैट वाज द लिंकेज दैट वाज थॉट एट दैट टाइम. तो ये आपको एड्रेस करना था. डिस्कस डिफिकल्टीज डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. डिज़ाइन तो आपने जो हुए हैं वही आपको एक्सपीरियंसेस बेसिकली इनडायरेक्टली वही चीज़ें पूछ रहे हैं जो हो चुका है. तो हाउ यू कैन राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. लैंड रिफॉर्म्स, agriculture productivity and elimination of poverty are intricately linked and interdependent relationship between these. ठीक है, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इंक्रीज बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ पुअर फार्मर. लैंड रिफॉर्म से ये आ जाएगा. इसको और स्ट्रीमलाइन, आप सीधे सीधे लैंड आ गए ना तो दे विल हैव कैपिटल.
in terms of directly land itself is a big factor to alleviate poverty. तो सबसे बड़ा तो वही है ना। तो ये आपको हाईलाइट करना था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मोर लैंड अंडर प्रोडक्शन, कल्टीवेशन। ठीक है, फूड सिक्योरिटी। तो आप इस पे बात कर सकते हो कि मोर लैंड क्या, बेसिकली यूज ऑफ वेस्ट लैंड, और जो स्पेसिफिक है देन आपका कि डेली बेसिकली एफिशिएंसी हमारा बढ़ जाएगा विथ ड्यू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्शन। जो हम एक बात करते हैं ना, एक लैंड पे जो हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत एग्जांपल देते हैं कि खेत पे 3 लोग करेंगे तो ऑप्टिमम पॉइंट जाएगा, उस पर ज़्यादा 5 लोग करेंगे तो डिमिनिशिंग हो जाएगा। तो उससे पहले हमारा जब लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन ही आता है तो वी वर अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड, सॉरी अनएम्प्लॉयड नहीं, अंडर एम्प्लॉयड केस था। तो अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वी कैन एक्वायर दैट ऑप्टिमल स्टेज। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इनकम विद फार्मर। तो सीधे सीधे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना यार। खेती इज व्हाट, अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ऑल पॉलिटिकल एट पॉलिटिकल लेवल लैक ऑफ वेल। ठीक है, सोशल लेवल नो चेंज इन एटीट्यूड ऑफ रिच फार्मर, इंस्टीट्यूशनल लेवल लैक ऑफ डिटेल। देखो सबसे बड़ा जो था ना हमारा उस टाइम पे, दैट वाज फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो इसको इन्होंने भगाया था। तो ये ख़त्म नहीं हो गया है। लैंड सीलिंग फिर हम एक्ट लेके आए थे, उसको 9 शेड्यूल में डाला था, तो इट स्टिल एग्जिस्ट। 300A में है ना आर्टिकल, तो इट स्टिल एग्जिस्ट। तो आप कैसे लोगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, आइडेंटिफिकेशन करना, पहले तो आप लोगों से कैसे लोगे, है ना, कैसे पर पर्सन करोगे, तो अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दीज आर द इशूज। इन इसके लिए स्टैंडर्ड टर्म्स जो हैं आपकी लैंड रिफॉर्म जो चैप्टर है उस पर बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो वो आपको समझ में आ रहा है ना कि आपको अब बॉडी में कौन कौन से टर्म उठाने हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, इनिशिएटिव पीएम मोदी लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन प्रोग्राम, लैंड सीलिंग एक्ट। ठीक है, कमिटी। इसमें आपका सेकंड पार्ट क्या था, ये तो और पूछा नहीं है ना, आपने क्या लिखा है, इनिशिएटिव टेकन। ठीक है, हाँ, कि हम डिजिटाइज कर सकते हैं, तो आप इसको और बढ़ा के कि विद ड्यू डिजिटाइजेशन एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ लैंड, the process can be made easier and friendly with use of technology. Conclusion, land reform will help in attaining sustainable development goal। कौन सा है, 2 towers। So SDG 2, 3 is about health and well-being, 4 is about education, 5 gender इक्वालिटी पे है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लो। 1 एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, 2 3 कैसे हो रहा है भाई। इन्होंने क्या लिखा है, सेकेंड स्टूडेंट है भाई हमारे। इंट्रोडक्शन इनका पढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म टुक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस विद एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, इट वाज माय सेट। ठीक है, आप ये चीज़ें जो लिखे हो, अब इसको थोड़ा सा ये दिखा देते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रोवाइडिंग, अब ये कैसे इंक्रीज करेगा, खैर आपको नीचे दिखाना ही है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो, दैट विल डू इन दिस सिनेरियो। रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थ्री, लैंड रिफॉर्म, मिनिमम लैंड विथ ऑल, स्मॉल फार्मर विद ओनर इज मोर प्रोडक्टिव। नहीं, जो इन्होंने फर्स्ट केस में जो इन्होंने दिखाया है ना, उस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके जो है लैंड
ओनरशिप एनॉमलीज हैं, वेस्टलैंड है उसका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अगर आप डायग्राम भी बना दो तो क्या होगा कि हम इसको अगर ट्रांसफ़र कर दें सेकंड पर्सन के पास जिसके पास कुछ नहीं है, लैंडलेस के पास, तो ही हैज़ लैंड एंड इट लीड्स टू व्हाट, ही विल कल्टिवेट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जब हम बात करते हैं हमेशा याद रखिएगा दो बातें, प्रोडक्टिविटी कम्स फ्रॉम टू फैक्टर्स, दैट इज इंक्रीज इन नेट एरिया, आप इतने में खेती कर रहे थे, नाउ यू आर डूइंग इन दैट मच एरिया, सो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट लाइक ये हो गया लाइक प्रोडक्शन, बेसिकली इसके लिए बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी तो नहीं बोलते हैं। सेकंड इज कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हो तो इतने ही लैंड पे पहले लेट्स से 10 kg हमारा ग्रेन आ रहे थे, नाउ इट इज 20 kg, so that is due to increase in productivity of the crop, ठीक है। more employment opportunity in agriculture sector, ठीक है, तो that will lead to reduction। तो दो चीज़ें हैं, एक एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपके खर्चे भी तो कम हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली इफ यू विल गेट फूड एंड ऑल दैट, तो वो देन फर्दर लिंक्ड है, बट ठीक है, आपको एक कोर सॉलिड रिलेशनशिप दिखाना है। रीजन फॉर डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपको लैंड रिफॉर्म चैप्टर एक बार पढ़ना है, इससे जो रिलेटेड चीज़ें थी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, डाइवर्जन ऑफ लैंड ओनरशिप, ये सब बातें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें भी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। आप किसको दोगे डेजिग्नेशन, लाइक हु विल बी द अथॉरिटी, पूरा जितने भी आप वहाँ पे इश्यूज आए थे ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। देन वे अहेड, अगेन हमने बात कर ली है फर्स्ट आंसर में, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम वी कैन मेक द प्रोसेस इजी एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर टू प्रमोट द पिंक रेवोल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री फॉर इंश्योरिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्रिटिकली इलूसिडेट द स्टेटमेंट, ठीक है। अगर सिर्फ इतना होता, भगा देते हैं यहाँ से, अब थोड़ा सा क्रिटिकली के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। सोचो सिर्फ इतना होता कि इलूसिडेट द स्टेटमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना था, एग्री करना था इस चीज़ से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब क्रिटिकली इलूसिडेट से क्या है कि हम एग्री तो करेंगे ही करेंगे, साथ में और बात करेंगे कि पिंक रेवोल्यूशन के अलावा भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, यूज ऑफ मिलेट्स जो हमारा गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। देन आपका दालें जो हैं, दाल के लिए लेंटल्स के प्रमोशन को या यूज को बढ़ाना है, ठीक है। फर्दर आपका अपटेक वाला जो इशू है उसको भी आप बिना अपटेक को एड्रेस किए हुए न्यूट्रिशन नहीं बढ़ा सकते हो, तो बात करोगे कि बेसिकली कोर आइडिया क्या है ना पिंक रेवोल्यूशन का, इट इज डीलिंग विथ मीट एंड पोल्ट्री, तो इसमें प्रोटीन और प्रोटीन बेसिकली बहुत होता है और आयरन भी है, तो इट कैन बी सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड आयरन, और इससे जुड़ा है ना, सीधा सीधा आपको जोड़ना पड़ेगा एनीमिया का जो केस है ना, दैट इज वेरी मच प्रिवलेंट, ठीक है। तो ये तो आप बोल दोगे कि ये सोर्स है, अब क्रिटिकल पॉइंट में यही आपको बताना होगा कि सिर्फ सोर्स, अगर हम पिंक रेवोल्यूशन आते हैं तो विल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ मीट, बट अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट मीन ईटिंग और फूड चेंज इन फूड हैबिट बिहेवियर, जो लोग वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन ही रहने वाले हैं, देन इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको ऐड ऑन करने होंगे, बट ऑब्वियसली आप पहले सिचुएशन दिखाओगे कि देयर इज अ prevalence of malnutrition and this can help। तो क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, पिंक रेवोल्यूशन रिफर्स टू रेवोल्यूशन इन, सीधे इतना है भैया, रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन टू मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है, इतना नहीं, रेवोल्यूशन नहीं, सिंपल।
नॉन वेजिटेरियन डाइट इज रिच इन प्रोटीन विच कैन हेल्प इन बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. दिस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट टू टेक स्टेप टू प्रमोट पिंक रेवोल्यूशन. ठीक है, प्रोटीन एंड आयरन दोनों चीज़ें हैं. आयरन भी क्रिटिकल है, ठीक है ना. जनरली हमारा प्रोटीन पे ही ध्यान जाता है, बट मीट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एज वेल. और उसका सीधा कनेक्शन हमारा एनीमिया से जो है, जो कि प्रेवलेंट है. गवर्नमेंट का नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो चल रहा है उसमें हमारा टारगेट भी है ना. तो दोनों ही चीज़ें हैं. स्टेप टू स्ट्रेंथन पिंक रेवोल्यूशन, ये भी पूछा है. ये फाइनल में आप सॉल्यूशन दोगे, बट उससे पहले आप क्रिटिकल व्यू भी दे दोगे. वो फॉलो वेजिटेरियन डाइट इन्फ्लुएंस बाय, ये कंक्लूजन नहीं है आपका, ये क्रिटिकल व्यू है. ठीक है, लाइक ये सीड वीट विच आर ऑल्सो न्यूट्रिशन सोर्स. ठीक है. इलुसिडेट मतलब प्रकाश डालना, स्पष्ट करना. या इलस्ट्रेट, इलुसिडेट, थ्रो लाइट, सब एक ही चीज है यहाँ पे. दे आर ऑल सिनोनिम्स. इसका मतलब है कि कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. इलुसिडेट मतलब जो प्रोसेस है अंडरलाइन उसको दिखाना. ठीक है. तो इन्होंने इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, पिंक रेवोल्यूशन को डिफाइन किया है, मतलब डेफिनेटिव इंट्रोडक्शन उठाया है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग इन इंडिया इन द कोई आई थिंक दुर्गेश पटेल या वो हैं, वो टर्म दिए थे. दैट आप अगर ऐसे लिख पाओ तो और अच्छी बात है. दुर्गेश पटेल ही है ना जिनको फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन बोलते हैं. आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक देयर इज दिस गाय हु gave this term pink revolution, which refers to increase in production and productivity of meat and poultry sector. ठीक है. लाइफ स्टॉक कंसेंसस, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक इन इंडिया 2 मिलियन. ठीक है. अब ये डाटा आपके पास है तो, बट इसका यूज कैसे करना है, यू विल हैव टू बी क्लेवर अबाउट इट. बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कैन इंश्योर स्ट्रेंथनिंग फॉलोइंग मेजर कैन इंडस्ट्री. तो देखो अब यहाँ पे ना आपको क्या हमें एक्चुअली इलुसिडेट करना है. क्रिटिकली वाला पॉइंट हम एक टाइम के लिए हटा देते हैं. ठीक है. हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि आप एक ही पॉइंट लिखो, उसी में अच्छी बात भी कर दो, वहीं पे क्रिटिकल पॉइंट भी डाल दो. अदर अल्टरनेटिव रूट आप ये ले सकते हो कि आप पहले इलुसिडेट कर दो 1 2 3 जो भी है, देन क्रिटिकल पॉइंट आप ऐड कर दो. बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल, कोई इसके लिए आपके मार्क्स नहीं लेने वाला है. तो ये वाला आसान है ज़्यादा, है ना, कि पहले आप इलुसिडेट कर दिए कैसे है, देन उसमें क्रिटिकल व्यू जो इन्होंने लास्ट में लिखा था, फूड हैबिट, वेजिटेरियन एंड ऑल दैट, तो आप डाल सकते हो. ओके. फिर है क्रिटिकल इलुसिडेट, प्रॉस कॉन्स. प्रॉस कॉन्स तो हर चीज़ में आप लिखते हो ना, प्रॉस तो आप लिख ही चुके हो. इसमें बेसिकली आपको इलुसिडेट में प्रोसेस दिखाना है. ठीक है. These are rich source of ये including in diet will lead to uptake of protein and iron. वो आपको चीज़ें दिखाना था. यहाँ पे भी अगेन इकोनॉमी में भाई ब्लॉक डायग्राम आर हार्ट एंड सोल, जान लो. इकोनॉमी में आपको ये प्रोसेसेस दिखाने पड़ेंगे. जैसे ज्योग्राफी में मैप इज हार्ट एंड सोल, यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, कनेक्ट करना पड़ेगा. सेम गोज फॉर लाइक पेपर 3 के लिए कुछ चीज़ें हैं, हर पेपर में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है. जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है तो आप पे आपको वो साइक्लिक डायग्राम है, तो प्रैक्टिस करते रहो बार बार, जब भी मौका मिले ना तो यू हैव टू डू दिस. इसमें आप नहीं कर सकते हो. ठीक है. जब जैसे डायमेंशन बात कर रहे हो या एस्पेक्ट जैसे बात कर रहे हो तो यूज दिस काइंड ऑफ डायग्राम की 1 2 3 4, है ना. ये खासतौर पे तो एथिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होना है, बट यहाँ पे भी आप ये सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक डायग्राम है, क्योंकि अक्सर इस तरह के लिंकेजेस पूछता है, तो यूज दिस थिंग. और यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. ठीक है. ऐसे भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो कि 1 2 3. ठीक है. सो यूज दिस थिंग इन इकोनॉमी आंसर्स. इंटरनल सिक्योरिटी में भी अप्लाई होता है, तो प्रैक्टिस दिस थिंग. अगर नंबर बढ़ाने हैं 1 से 2 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे
potential है to increase your mark by 1 to 2 marks. Okay. Next question, what are the different type of agricultural subsidies given to farmer at national and state level? That is first part, critically analyze the agricultural subsidy regime with reference to distortion created by it. देखो ट्रिगर कहाँ से हुआ है, डिस्टॉर्शन के नाम पे WTO में जो इशू उठा था उसकी वजह से है. देन दैट्स वन. एंड सेकेंड इज आप कभी भी बजट देखते हो ना तो उसमें एक ह्यूज सेक्शन जाता है सब्सिडीज के लिए, एंड देयर इज वेरी मच डर्थ ऑफ व्हाट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस थ्रू दिस सेक्टर. तो ये बहुत चीज़ें खा रहा है विच इफ वी वर टू यूटिलाइज इन अदर सेक्टर बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हम उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. तो दीज वर द कंसर्न्स. चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इन्होंने लिखा. एग्रीकल्चरल सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट लेवल बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट. अब यही स्टेट गवर्नमेंट ही लिख दो ना, सेंट्रल एंड स्टेट, इतना भी काफ़ी है. सेंट्रल स्टेट टू इंकरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अमंग, खाली इंकरेज प्रोडक्शन नहीं है, फॉर वेरियस रीजन है ना. इनपुट डिस्ट्रेस के लिए प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन के लिए करते हैं, आपका सिक्योरिटी जो है जो फार्मर स्पेसिफिकली मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए करते हैं. तो कई चीज़ों पे आपको है इंश्योरेंस की तरह जो है तो आपको बात करनी पड़ेगी. डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी, ठीक है. ओके. अब इसमें देखो आप कई तरह के लोगों ने कई तरह के आंसर लिखे हैं टाइप ऑफ सब्सिडी में, लाइक बट स्टैंडर्ड यही है जो गवर्नमेंट टर्म्स यूज़ करती है. और गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है टर्म्स? इनपुट सब्सिडीज, ठीक है ना. इनपुट सब्सिडी में आपका जो सीड पे है, ठीक है, यूरिया पे है, ठीक है, ये. देन आपका इक्विपमेंट और इससे रिलेटेड जो सब्सिडीज देती है जैसे कि सोलर पंप पे हो गया, पावर पे हो गया, ठीक है. देन इसके अलावा आपका गवर्नमेंट सब्सिडीज किस पे देती है? क्रेडिट पे देती हैं, है ना. किसान क्रेडिट कार्ड यू नो कि 7% वैसे होता है, 3% इंटरवेंशन देते हैं. देन अगर वो टाइमली देते तो कुल मिला के 0 का एंड आ जाता है कहीं कहीं पे. देन इसके अलावा मार्केट सब्सिडीज देते हैं, MSP बेसिकली. तो ये आपको ओवरऑल बात करना था. लाइक अगर हेडिंग दे के जाओ जो कि वेल नोन है, स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, देन दे आर एक्सेप्टेड, तो वो बेहतर है. स्टेट लेवल पे भी आप बात कर सकते हो, बट यहाँ पे आप सिर्फ एग्जांपल ही दोगे ना, टाइप कैसे बताओगे, ठीक है. तो बेहतर यही है कि आप ये लाइक हेडिंग ये डालो और नेशनल लेवल पे ये जो भी है एग्जाम्पल में लिख दो, ठीक है. ओके. देन हमारा क्या बचता है, सेकेंड पार्ट क्या है? क्रिटिकली एनालाइज एग्रीकल्चर सब्सिडी रेजिम विद रेफरेंस टू डिस्टॉर्शन क्रिएटेड बाय. तो सबसे बढ़िया आपका MSP कैसे डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है ये तो वेल नोन है, ठीक है. इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, जो नई साइकिल आती है तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ प्राइस, दैट क्रिएट्स डिस्टॉर्शन. दलवाई कमेटी, हाँ आप बिल्कुल यहाँ पे आना था. अब ये जीरो बजट फार्मिंग कैसे अप्लाई होता है यहाँ पे, ये आप मुझे जब मिलिएगा डिस्कशन के टाइम पे तो बिल्कुल समझाइएगा कि हाउ दिस इज रिलेवेंट हियर वे अहेड के नाम पे. लाइक आप ये बात कर सकते हो ना कि हम सब्सिडीज को रैशनलाइज करें, ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन या सॉरी वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन देते तो समझ में आता. हाउ इज दिस ऑफ रेलेवेंस, कनेक्शन जरूर बताइएगा भाई. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी. इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है? Agricultural subsidies are incentive paid to farmer and agricultural organization to supplement their income and reduce cost of agricultural commodities. ठीक है, ठीक है, अच्छा है, comparatively it's better. जो आपने अप्रोच लिया है इट साउंड्स समवॉट स्टैंडर्ड, तो वो चीज़ आपका बस पढ़ के आना चाहिए कि हाँ यू आर कमिंग फ्रॉम
वेल रेड प्लस, ठीक है। टाइप ऑफ सब्सिडीज नेशनल लेवल पे फर्टिलाइजर सब्सिडी, कालिया स्कीम। अब वही बात है, आप टाइप की जगह पे स्कीम बता रहे हो ना, तो ये क्या है, प्राइस सपोर्ट है। आपको ये मालूम होना चाहिए टाइप क्या है, तो प्राइस सपोर्ट सब्सिडी है या स्कीम है बेसिकली। प्राइस बोलो या इनकम सपोर्ट बोलो, ठीक है। बट ये टाइप, you can see yourself, it won't be classified as a type rather than a particular type of scheme, not a type of subsidy. Critical analysis of subsidy regime, तो स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस कर दिया है कि एक्सचेकर पे जो है लोड बढ़ाता है, ठीक है। देन आपका डिस्टॉर्शन जो क्रिएट करता है कहाँ कहाँ पे, वो आप बात करोगे, और WTO का तो मेंशन आएगा ही आएगा यहाँ पे, तो वो। एंड देन फाइनली वे फॉरवर्ड में कि देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज, ठीक है। अशोक दलवाई कमेटी या कोई भी जो अभी इस टाइम पे कमेटी आई थी, उसकी बात करोगे कि इसकी रिकमेंडेशन को फर्स्ट टू रैशनलाइज, नीड टू रैशनलाइज एंड देन इम्प्लीमेंट अशोक दलवाई कमिटीज, तो आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। सो दैट सम्स इट अप फॉर टुडेज सेशन। इसके बाद क्या बचता है, कुछ और? आई थिंक डिजास्टर, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। तो आई इंक्लूड डिजास्टर एंड एनवायरनमेंट एक ही साथ, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं हैं। साइंस एंड टेक का एक साथ देख लेंगे सैटरडे एंड संडे, एंड आफ्टरवर्ड्स हमारा GS पेपर 3 लगभग ख़त्म हो जाएगा। GS 1 का अभी भी डिस्कशन बचा हुआ है जो आप लोग कल प्रोवाइड करोगे योर लर्निंग्स। सो आफ्टरवर्ड्स, एंड आई वुड रिकमेंड, और भी आप जो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक अ डेडिकेटेड ग्रोथ कॉपी, रजिस्टर, वट एवर इट इज, एंड नोट डाउन द डिफिकल्टीज। अगर ये 4 चीज़ें आपने पकड़ ली ना, डिमांड्स क्या है क्वेश्चन का, पार्ट्स कितने हैं, एंड देन राइटिंग अ गुड इंट्रोडक्शन एंड फ्रेमिंग दिस थिंग, तो आपको लास्ट में क्लियर करने के बाद में कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वाली जो चीज़ें हैं ना, उसमें कुछ कुछ कीवर्ड उठा लेने हैं, वही लिखना है, एंड इट विल बिकम सो ईजी एंड time effective that I cannot describe it. It's like filling up all the things, and trust me, when you are formulating answer, it's very difficult, you know that. आप ऐसे खुद से करके देख लो, rather than like having this fill up। जब आपके पास ऑलरेडी होता है ना, तो क्यूज होते हैं कि आपको लिखना क्या है। so that helps, और हेल्प किया है लोगों को लिस्ट में और IAS में और तीनों ही जगहों पे इम्प्रूवमेंट में, मार्क्स में, and substantial improvement में। So do that. See you in next video.